Okay, stay online, sir. I will just check out in our system. Okay, okay. Udai. Thanks for waiting. Okay, sir, we have some important notice for you. Okay. सर आपने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है SBI बैंक से। आपने उससे अभी तक 1 लाख रुपए की अमाउंट यूज कर लिया है, बट वो आपने रीपेड नहीं की। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? तो हमारा डिपार्टमेंट आपको यही सजेस्ट करेगा आप इसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर कराएं हैदराबाद में विद इन 2 आवर्स। नहीं सर, आप ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर करवा दें। करिए कभी ऑनलाइन कंप्लेन आपने? जी, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ हैदराबाद पुलिस स्टेशन। लाइन पे बने रहिए मेरे साथ। We are transferring your call to Hyderabad Police Department. ओके मिस्टर प्रशांत, आप अभी ऐसा करें कि आप हमारे पास हैदराबाद सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचे। हाँ। आप 2 घंटे के अंदर अंदर इधर पहुंचे, क्योंकि कोर्ट के द्वारा आपके अकाउंट्स को फ्रीज करने का, सीज करने का, आपके बैंक अकाउंट्स को, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स को हमें फ्रीज करने का ऑर्डर मिला है। तो है ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए आप इसको डाउनलोड करें, स्काइप को अपनी आईडी क्रिएट करें और हमारे सीनियर ऑफिसर आपसे वीडियो कॉल पे आपका स्टेटमेंट दर्ज करेंगे और आपको अभी के अभी आपके മൊബൈൽ पे ക്ലാരിഫൈ ലെറ്റർ जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മൈ തോട്ട്സിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ അടുത്ത തട്ടിപ്പുമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് ടൈം ജോബ്, ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ്, ലോട്ടറി, വിദേശത്തുനിന്നുള്ള പാർസൽ, MDMA ഇല്ലീഗൽ ഐറ്റം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത അവരുടെ തട്ടിപ്പ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണ്. എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക, ആരും ചെന്ന് പെടരുത്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് വന്ന കോളിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച തട്ടിപ്പ് രീതിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കോൾ വന്നിട്ട് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ വോയിസ് ആണ് കേട്ടത്. എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ 9 പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്റെ പേരും സ്റ്റേറ്റും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ. എന്നിട്ട് അയാൾ RBIയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും SBI ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ച് 1 ലക്ഷത്തിനുമേൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചടച്ചില്ല, അതെന്തുകൊണ്ട് അടച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ SBI ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ലെന്ന്. അപ്പോ അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആധാർ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡോക്യുമെന്റ് കളവ് പോയോ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന്. അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്നവരോ സിം എടുക്കുമ്പോഴോ ആരേലും മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം. സോ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം എന്നും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് FIR നമ്പർ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ, യൂസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട്, ഡേറ്റ് എല്ലാം എന്നോട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് പോലീസിന് കോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ബാക്കി പിന്നെ പോലീസുകാരന്റെ വകയായിരുന്നു അഭിനയം. ഞാൻ FIR നമ്പർ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. പിന്നെ RBI ഇക്കാരൻ തന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഇതിൽ 1,18,626 രൂപ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് കോടതിയിൽ കേസുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് പോലീസിൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ആവും, കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ആവുമെന്ന്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതല്ല, എന്റെ പേരിൽ വേറെ ആരോ യൂസ് ചെയ്തതാ. അത് RBI കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചതെന്ന്. അപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹൈദരാബാദ് സുൽത്താൻ ബസാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ കേരളത്തിലുള്ള ഞാൻ 2 മണിക്കൂറിൽ അവിടെത്തും എന്ന്. അപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഓകെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. അതിന് അയാളുടെ സീനിയർ ഓഫീസറോട് വീഡിയോ കോൾ വഴിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സ്കൈപ്പ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ഞാൻ കേരളത്തിൽ ആണല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യം കേരള പോലീസിൽ പോയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം എന്ന്. അപ്പോ അയാൾ അതൊന്നും വേണ്ട, അതിന് സമയമെടുക്കും, പിന്നെ അവിടെ പോയാലും അവർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദ് പോലീസിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ സമയം എടുക്കും, ഇതാവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കഴിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾ മാക്സിമം എന്നെ കൺവീനിയൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് നല്ലോണം സമയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം അയാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിന്റെ നമ്പറായ 1930 വിളിച്ചു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോ അവർ ചോദിച്ചു ഉഡായിബ് ആണെന്ന്, മനസ്സിലായില്ലേ, വേറൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന്. ഞാനും പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഇങ്ങനൊന്ന് നടന്നു, സോ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതാ, ഞാൻ ഇനി വേറെന്തേലും ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കോൾ വന്ന നമ്പർ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വോയിസ് ഇടാനും പറഞ്ഞു. സൈബർ സെല്ലിന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക, ഇങ്ങനൊക്കെ കോൾ വന്നാൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല, ആരും തട്ടിപ്പിന് ഇരയാവരുത്. ഇങ്ങനെ കോൾ വന്നാൽ എന്തേലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടേൽ 1930 വിളിക്കുക. അവരുടെ കോൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഹിന്ദി വെച്ച് കാച്ചിയിട്ടുണ്ട്. Okay, stay online, sir. I will just check out in our system. Okay. Udai.
Thanks for waiting. PRASANTH. Yeah. Are you from Kerala? Yeah. Okay. Okay. Sir, we have some important notice for you. Okay. सर आपने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है SBI बैंक से, Okay. हैदराबाद से की ब्रांच से, जो कि 13 फरवरी 2024 को किया गया है। आपने उससे अभी तक 1 लाख रुपए की अमाउंट यूज कर लिया है, बट वो आपने रीपेड नहीं की। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, मैं यूज नहीं करता है। सर देखिए, ये क्रेडिट कार्ड आपके नाम से अप्लाई किया गया है और इसे 1 लाख रुपए यूज कर लिया गया है। अब आपको जानकारी होगी ये कैसे हुआ, क्योंकि सिस्टम में तो आपके नाम पे रजिस्टर शो किया जा रहा है। सर मेरे नाम पे? जी सर। क्या करते हैं आप, स्टूडेंट है सर कि जॉब पर्सन है? मैं जॉब करता हूँ। सर आप कह रहे हैं कि ये आपने क्रेडिट कार्ड रजिस्टर नहीं किया अपने नाम पे, ऐसे ही है सर? आपको इसकी जानकारी नहीं है? नहीं। ओके सर, एक्चुअली हमारी ये कॉल रिकॉर्डेड कॉल है, ऐसा एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, अगर आप 100% श्योर है ये कार्ड आपने रजिस्टर नहीं किया, ठीक है? नहीं किया। सर 13 फरवरी 2024 को आप कहाँ थे सर? 13 फरवरी 2024। यस सर। हाँ। किधर थे आप, कहाँ थे? मैं इधर केरला पे। हाँ, हैदराबाद में गए? नहीं, हैदराबाद नहीं गया। ओके सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई हो, किसी अनजान व्यक्ति ने यूज़ करके आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट से ये क्रेडिट कार्ड रजिस्टर किया और आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है सर? नहीं, मुझको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। देखिए, क्योंकि सर आपने अपना आधार कार्ड कभी गुम हुआ हो या किसी को दिया हो सर? आधार कार्ड तो किसी को नहीं दिया, लेकिन हम फोटो सेट करता है, जैसा कुछ करते हैं ना वही किया, और कुछ नहीं किया। देखिए सर, इस टाइम हमारे देश में पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीकेज का बहुत इशू चल रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने रजिस्टर नहीं किया, बट आपके नाम से रजिस्टर हो गया। हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे कि आपके ये नाम से रजिस्टर हुआ है और इसे 1 लाख रुपए की अमाउंट बैंक की यूज की गई है, ठीक है? जिसके कारण आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया गया था, बट आपने बोला कि ये मैंने नहीं किया। तो इस चीज़ से फिर आइडिया लग रहा है कि ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, क्योंकि आजकल 70 to 80% जो डाटा लीक हो रहा है हमारे देश में, वो जेरॉक्स कॉपी वाली शॉप से और सिम कार्ड वाली शॉप से आप सिम कार्ड लेते हो, अपनी डॉक्यूमेंट्स देते हो, फिंगरप्रिंट लगाते हो, जेरॉक्स कॉपी वाली शॉप से सेल हो रहा है सर। तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात है सर, क्योंकि बहुत क्रिटिकल इशू है। आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड रजिस्टर हो गया सर। ओके। इन फ्यूचर आपको इसकी बहुत दिक्कत हो सकती है कि इससे बड़ा कांड हो जाता है, कोई गाड़ी रेंट पे लेके ड्रग सप्लाई कर देता है, मर्डर कर देता है, एवरीथिंग कुछ भी कर देता है सर। तो आपको ये दिक्कत बन जाएगी ना सर? ओके। देखिए सर, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तो लीक हुए हैं सर। ओके। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड ऐसे नहीं रजिस्टर हो सकता और ये आपके लिए दिक्कत वाली बात है। 1 लाख रुपए की अमाउंट को छोटी अमाउंट नहीं है। तो हमारा डिपार्टमेंट आपको यही सजेस्ट करेगा, आप इसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर कराएं हैदराबाद में विद इन 2 आवर्स, ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये किस व्यक्ति ने किया, आपके नाम पे कौन कर रहा है ये, ठीक है? पॉसिबल है 2 घंटे के अंदर अंदर सर? 2 घंटे के अंदर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं अपनी हैदराबाद पुलिस स्टेशन। मैं हैदराबाद आके कंप्लेंट करना पड़ता है? नहीं सर, आप ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर करवा दें। करिए कभी ऑनलाइन कंप्लेन आपने? नहीं किया। हाँ, चलें आप पेन और पेपर ले लें, मैं आपको कुछ इसकी डिटेल्स नोट करवा देता हूँ, तो आपकी कॉल ट्रांसफर कर दूंगा हैदराबाद पुलिस स्टेशन। आप वहाँ पे इसकी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं सर। हाँ, ओके। पेन और पेपर टेक इट। हाँ, ठीक है। जी लिखें सर, नोटिफिकेशन यूनिट RBI। ओके जी, और FIR नंबर लिखें। ओके। RC 6722 6722। हाँ बोलो, 6722 0724 0724 जी /NIA एंड /हैदराबाद। ओके जी, क्रेडिट कार्ड नंबर लिखें। ओके। 5172 5172 76 25 8162 8162 7581। 7581। ओके जी, और एप्लीकेशन डेट लिखें ना फरवरी 2024 को। ओके। जी, कंसप्शन अमाउंट लिखें जो उस क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट की गई थी, 1,18,626। ओके ओके। जी, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ हैदराबाद पुलिस स्टेशन। लाइन पे बने रहिए मेरे साथ। ओके। We are transferring your call to Hyderabad Police Department. Please hold on the line. आपकी कॉल है। हेलो, हैदराबाद पुलिस मनोज कुमार स्पीकिंग, ऑन द लाइन। हाँ सर, मेरा नाम प्रशांत है, मैं केरला से। जी बोलिए। मुझको अभी RBI से फोन आया था। फोन आया था आपको? हाँ, फोन आया था। वो लोग बोला था मेरा नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया हैदराबाद से, फिर वो लोग यूज़ कर दिया 1 लाख के आसपास, ऐसे वो लोग यूज़ कर दिया। उसके बारे में आप कंप्लेन करने के लिए फ़ोन किया है। इसमें उसको कौन यूज कर रहा है आपसे? वो पता नहीं सर, कोई मेरा नाम पे क्रेडिट कार्ड ले लिया, मुझको कैसे पता? मैं केरला में, वो लोग हैदराबाद से यूज़ कर दिया बोला था। RBI आपको ये खबर किसने दी है? RBI बोल के बोला है। RBI वालों? हाँ, RBI नोटिफिकेशन यूनिट। इससे कोई और इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई हो आपको? वो लोग तो मुझको FIR नंबर दे दिया और क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया, एप्लीकेशन डेट दे दिया और कितना अमाउंट यूज कर नंबर बोलिए अपना। मैंने FIR नंबर जी, FIR नंबर RC 67 ओके 22 जी बोले। 07 0 7 7 24
/NIA हैदराबाद MIS NIA MIA हैदराबाद हैदराबाद। और ओके मिस्टर, मुझे आप अपना आधार कार्ड नोट करवाएं ताकि मैं अपना सिस्टम में चेक कर सकूं ठीक है। आपको क्या दिक्कत आ रही है। मुझको कुछ दिक्कत नहीं है, वो सर मेरा नाम से क्रेडिट कार्ड ले लिया, वो लोग यूज़ कर लिया, वो इसलिए मुझको कुछ दिक्कत नहीं आने के लिए वो आपको कंप्लेन कर रहे हैं। मिस्टर, इसीलिए मैंने आपसे बोला। आपका पूरा नाम क्या है। मेरा नाम प्रशांत। प्रशांत। हाँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप। केरला। से केरला। मिस्टर प्रशांत, हाँ आपने FIR नंबर मुझे नोट डाउन करवाया। हाँ। आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बताएं ताकि मैं सिस्टम में चेक करूं ठीक है। आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर बोलूँगा 5172762581627581। ओके मिस्टर, आप लाइन पे बने रहिए, ठीक है मैं सिस्टम में चेक कर रहा हूँ कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है ठीक है। मिस्टर प्रशांत, हाँ बोलो। ये हमें IBR की तरफ से RBI की तरफ से एक हमारे पास FIR आई है जो हमें कोर्ट में सबमिट की है। ओके। उन्होंने आपके खिलाफ एक केस दायर किया है क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करवा के उससे लोन लिया है हाँ। 1,18,636 रुपये हाँ। जो आपने अभी तक रिटर्न नहीं किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने वो वापस क्यों नहीं किया अभी तक। वो मैं बोला ना क्रेडिट कार्ड नहीं ले लिया, मेरे नाम से कोई ले लिया, उसलिए कंप्लेन करने के लिए RBI मुझको बोला वो आपको स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए। मिस्टर प्रशांत मेरी बात सुनिए। कैसे आपके अकाउंट से किसी और ने क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिया, मुझे बताइए आप कैसे ले लिया उसने। मुझको कैसे पता। कैसे आपको नहीं पता अकाउंट आपके नाम पे है मिस्टर। अभी तो कितना आदमी का इन्फॉर्मेशन हैक होता है, जैसे कोई हैक करके यूज कर दिया होगा। मैं केरला में हैदराबाद जाकर मैं कैसे क्रेडिट कार्ड ले लूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ। ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन या अपना कभी क्रेडिट कार्ड अपना आधार कार्ड कभी किसी को दिया। किसी को भी नहीं दिया। मैं सिम करने के टाइम नहीं, फोटो स्टेट लेने के टाइम कोई चोरी कर दिया होगा। अभी पूरा जगह पर आधार कार्ड का जरूरत है ना। अभी क्या लेना जब आधार कार्ड पूछते हैं ना, वो जैसा दे दिया वो टाइम वो लोग आधार कार्ड नंबर यूज कर दिया होगा। ओके मिस्टर प्रशांत, आप अभी ऐसा करें कि आप हमारे पास हैदराबाद सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि आपकी FIR नोट की जा सके, आपकी FIR रजिस्टर की जा सके और आपकी कुछ सहायता की जा सके। हाँ। आप 2 घंटे के अंदर इधर पहुंचे क्योंकि कोर्ट के द्वारा आपके अकाउंट्स को फ्रीज करने का, सीज करने का, आपके बैंक अकाउंट्स को, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स को हमें फ्रीज करने का ऑर्डर मिला है। तो आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं इधर। नहीं पहुंच सकते। कैसे केरला से हैदराबाद में कैसे 2 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते। मुझे बात चलिए ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपकी ऑनलाइन स्टेटमेंट रजिस्टर करते हैं। आप ऑनलाइन स्टेटमेंट का पता है कैसे करते हैं जी। नहीं आपके पास साइट डाउनलोड है। नहीं। आप उसको डाउनलोड करें और कॉल पे बने रहें। कॉल ठीक है करता हूँ, मेरा सामने पुलिस स्टेशन है ना, मैं इधर जाकर बोलूँगा, वो लोग तो कुछ कर सकते हैं ना। मैं इधर डायरेक्ट केरला में तो डायरेक्ट हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है ना, मैं सामने पुलिस स्टेशन में देखो बात सुनिए, आप हैदराबाद नहीं आए, आप हमें अपने ऑनलाइन मोबाइल से स्टेटमेंट दर्ज करवा सकते हैं। नहीं ऑनलाइन स्टेटमेंट दर्ज करवा सकते हैं। मैं जाके वीडियो कॉल पे हमारे सीनियर, मेरी बात सुनिए, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपकी वीडियो कॉल पे, वीडियो रिकॉर्डेड कॉल पे आपका स्टेटमेंट लेंगे ताकि आने वाले देखिए अभी उसने सिर्फ आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड दिया है, उधर आप FIR करवाएंगे, उसका कोई मकसद नहीं है। आपके खिलाफ कंप्लेन हमारे थाने में है। ओके, आपको इधर रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, मैं अभी मैं केरला में रहता है, मेरा इधर 5 किलोमीटर के अंदर पुलिस स्टेशन में, वो उधर जाकर मैं कंप्लेन करूंगा, वो लोग मुझको फिर क्या करना है तो वो लोग बोलूंगा, मैं उससे जैसा करेगा वो तो आप करेंगे, लेकिन आपके खिलाफ जो कंप्लेन दर्ज है वो आपकी कंप्लेन उधर रजिस्टर नहीं करेंगे, वो आपको पकड़ के उधर बैठा लेगा, फिर भी वो आपको हमारे पास ही भेजेगा। हाँ ठीक है, आपका स्टेटमेंट मेरा केरला पुलिस क्या बोलूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मेरी बात को सुने पहले। मिस्टर प्रसाद, फिर भी आपको कंप्लेन दर्ज इधर ही करवाना होगा और साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको अदालत से बेल भी लेना पड़ेगा। हम लोग जो आप हमारे सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हम आपकी सहायता इसलिए करते हैं, जैसा कि आपने बोला है कि हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन हैक हुई है। देखिए अगर वो यही काम किसी और बड़े कार में आपको ले जाता, अभी तो क्रेडिट कार्ड से उसने लिया, आप क्या काम करते हैं। डिलीवरी काम करते हैं। मिस्टर प्रसाद, आप अभी डिलीवरी का काम कर रहे हैं, मेरी बात सुने, अगर कोई ये काम कहीं आपको किसी बड़े काम में ले जाता, कोई और बड़ा काम कर देता, जैसा कि बैंक रॉबरी, कोई डकैती, किसी का मर्डर, कोई स्मगलिंग वगैरह, तो फिर आपका क्या बनता। इसीलिए हम लोग आप लोगों की सहायता कर रहे हैं ताकि आप लोगों को उन क्रिमिनल से सेफ रखा जा सके। हमारा कोरोना के दौरान एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें ऑनलाइन स्टेटमेंट ली जाती है, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स ऑनलाइन मोबाइल पे वीडियो स्टेटमेंट दर्ज करते हैं और वो बाद में कोर्ट में सबमिट की जाती है एज एविडेंस, जिससे आप लोगों को क्लैरिफिकेशन लेटर दिया जाता है कि अब आपको इस क्रिमिनल से कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप। हाँ। जी, तो क्या आप जा रहे हैं ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए, आप इसको डाउनलोड करें, स्काइप को अपनी ID क्रिएट करें और हमारे सीनियर ऑफिसर आपसे वीडियो कॉल पे आपका स्टेटमेंट दर्ज करेंगे और आपको अभी के अभी आपके मोबाइल पे क्लैरिफाई लेटर जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं मैं पहले हमारा
केरला तो आप ऐसा करें, आप अभी जाए उसे पुलिस स्टेशन चले, मेरी बात सुने, हाँ आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही, हाँ, आप हाँ। उसे चले पुलिस स्टेशन जाए, आप ठीक है जाएगा जाके उधर मेरी उनसे बात करवाएं, हाँ ठीक है उससे लाइन पे बने रहे हो, जाके मेरी बात करवाएं उससे, हाँ ओके मैं भी बात करता हूँ उससे, किसे और वो उधर ही आपको अरेस्ट करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आप कैसे बात नहीं मान रहे हैं। हाँ मैं तो केरला रहता है, पहले मैं केरला पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है ना, मैं सीधा डायरेक्ट कैसे हैदराबाद केरला पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, आपको इधर ही आना पड़ेगा, वो भी आपको पकड़ के अरेस्ट करके इधर ही भेजेंगे। हाँ ठीक है आपके 3-4-5 दिन जाया हो जाएंगे, आपको कोर्ट से जमानत देना पड़ेगा, आपका पैसा जाया होगा, आपका टाइम जाया होगा। हाँ ठीक है, मैं मुझको तो ज़्यादा टाइम है, मैं पहले स्टेशन में जाके उन्होंने आएगा। उसे जाए, अभी जाए, कॉल पे बने रहे और चले पुलिस स्टेशन चले। ഹലോ സാർ എൻ്റെ പേര് പ്രശാന്ത്. ആ എനിക്ക് സാർ ഒരു കോൾ വന്നിരുന്നു, ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു, RBI നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താ പറഞ്ഞവര്? എൻ്റെ പേര് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു, 1 ലക്ഷം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ചടച്ചില്ലാത്ത കോൾ വന്നത്. അവർ പറഞ്ഞ് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടുത്ത് കേരള പോലീസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ പോയി കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സാറേ? ആ ഉണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ അയച്ചുതരാം, അതിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഫേക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഫേക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് അതിലോട്ടെ അതിനകത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ആ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊന്നും. ആ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലേ? അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ആണോ? എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യണോ? അതെ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്പറും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി. ആ ഓക്കെ. അപ്പോ ആരും ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പിന് ഇരയാവരുത്. അപ്പോ ബൈ.